Well, with the launch of Tata Punch, Tata is now stepping into a completely new segment, or what they call as the micro SUV. But क्या मार्केट में टाटा पंच जैसी ये पहली ऐसी गाड़ी है? Exactly, अगर हम देखें ऑन पेपर तो डेफिनेटली yes, but we do have rivals like the Maruti Ignis जो ना सिर्फ इसके डायरेक्टली प्राइस सेगमेंट में compete करते हैं but also offers similar capabilities and a similar package. And I'm very sure that the buyers of the Tata Punch, they'll be definitely comparing this vehicle to the rivals like the Ignis or maybe to the Mahindra KUV100, Tiago NRG, etc. Well, we thought that the Ignis is one of the closest rivals to the Punch, as not only is the pricing very similar, but both of these cars offer a very similar package as well. Well, in this video, we compare both these vehicles and see which one of these is a better package for you. Welcome to Auto Hunters India, everyone. I am Nitin Kalia. It's time to begin. Well, starting with the exteriors first, let us talk about the Punch. अगर हम Punch की बात करते हैं तो this is getting what we call as the modern SUV design language. To start with, well, you have the bumper mounted headlamps. I also have these very prominent LED DRLs, a high set hood, and in all, the design language definitely looks a lot more modern, a lot more fresh, and I'm very sure that this will definitely appeal to a wider section of the buyers when compared to cars like the Ignis. अब इग्निस की बात करता हूँ, so this is getting what we call as the old school boxy design. Flared wheel arches आपको मिल रहे हैं, big headlamps आपको up front मिलते हैं. Now let me tell you, this is not the top of the line variant. On the top of the line variant, you will be getting LED DRLs, LED projectors, and a lot more features which are missing from this variant. But let me tell you, the overall designing, the styling remains exactly the same. So the Ignis, well, it gets, as I mentioned before, the old school boxy design with flared arches, very prominent cladding on both the sides, a fox skate plate at the front, and in all, अगर मैं दोनों डिजाइन्स की बात यहाँ पर करता हूँ, somewhere जहाँ पर पंच एक बहुत मॉडर्न अपील दे रहा है आपको, the Ignis on the other hand is a little contemporary and may not appeal to everyone. Having said that, the ground clearance offered by both these vehicles are almost similar, but एक और जो आपको चेंज मिलने वाला है वो है इसका हुड. Now this is not as bulky or I would say as bold as the Punch, और जो overall styling है, I think all the marks at least for the front profile goes to the Punch. तो हमने इस फ्रंट प्रोफाइल को चेक किया. अगर मैं साइड प्रोफाइल से गाड़ी की बात करता हूँ, the Punch is decisively longer, higher when compared to the Ignis. बेटर अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं. मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट क्लैडिंग अक्रॉस द बॉडी मिल जाता है. साइड में आने के बाद तो काफ़ी बड़ा क्लैडिंग मिलता है. नॉर्मली वैसे अगर आप पूछें कि क्लैडिंग का क्या काम होता है, सो दैट इज़ प्रोटेक्टिंग अ पेंट वर्क फ्रॉम स्क्रैचेस. आप नॉर्मली ट्रैफिक में चल रहे हैं, बाइक वाले स्क्रैच मार जाते हैं, आप थोड़ा सा ऑफ रोड में एक्सट्रीम कंडीशन में ले जा रहे हैं, जो आपके बुशेज़ वगैरह हैं या आपका पत्थर वगैरह हैं, अगर वो बाई चांस हिट करता भी है, सो योर मेटल पैनल्स, योर पेंट फिनिश, दैट रिमेन्स अनडैमेज्ड. हैविंग सेड दैट, अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करता हूँ, काफ़ी एक मॉडर्न, एक काफ़ी एग्रेसिव स्टाइलिंग आपको मिल जाती है. द कार डेफिनेटली लुक्स अ लॉट मोर बोल्ड व्हेन कंपेयर टू द Ignis, और एक काफ़ी बेटर रोड प्रेजेंस आपको देने वाला है. Another major change in the Punch is the placement of the door opening handle for the rear doors. Ignis में आपको नॉर्मल वाले जो हमने पहले से हम गाड़ियों में देखते आए हैं, आपको नीचे मिलता है, बट जो पंच है उसमें आपको राइट नेक्स्ट टू द विंडो मिलता है, which we saw for the first time in, I guess, the Chevrolet Beat. And in my opinion, looks at least the rear 1/3 of the vehicle looks very funky, very aggressive, and I think you will definitely appreciate that. So well, we check the side profile of the Punch. Ignis की बात करता हूँ मैं on the other hand. Well, आपको काफ़ी सारे prominent changes देखने को मिल जाते हैं. To start with, आपकी जो cladding है, it is less prominent. आपको थोड़े से ज़्यादा फ्लेड व्हील आर्चेस मिल जाते हैं. डायमेंशंस में आपको एक क्लियर कट फ़र्क दिखता है. जो Ignis है, इट इज़ डिसाइसिवली स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू द पंच. एंड इसके अलावा भी अगर हम पूरी प्रोफाइल को बात करते हैं, तो इट रिटेन्स दैट बॉक्सी, नॉट सो मॉडर्न, और आई वुड से अ लिटिल कन्वेंशनल डिज़ाइन लैंग्वेज. एंड दिस मे नॉट, लेट मी टेल यू, दिस मे नॉट अपील टू ऑल द बायर्स. लेकिन पंच की बात करता हूँ, एक बहुत स्मार्ट लुकिंग व्हीकल है. फीचर्स की बात करूँ, वेल, बोथ दीज कार्स दे आर अवेलेबल विद अलॉय व्हील्स. आपको Ignis के अंदर ग्लॉस ब्लैक मिल जाता है अलॉय व्हील में, बट लेट मी टेल यू, दैट इज़ R15 साइज. पंच की बात करूँ, ऑन द अदर हैंड, इट गेट्स R16 alloy wheels with dual cut design, and in my opinion, the alloy wheel design of the Punch is definitely better than what we see on the Ignis. Well, other major changes, well, they include better, or I would say larger dimensions with the Punch, a longer wheelbase, and let me tell you, even better capabilities, be it the ramp over angle, approach angle, or departure angle.
बट लेट्स स्पीक ऑफ द रियर डिज़ाइन नाउ। पंच की बात करते हैं तो बेसिकली आपको थोड़ा सा हिंट ऑफ नेक्सॉन यहाँ पर ज़रूर मिलने वाला है। यू गेट द सिमिलर ट्रायरोड्स ट्रीटमेंट ऑन द टेल लाइट्स। द टेल लाइट्स दीज वंस आर LED यूनिट्स। Ignis on the other hand gets normal halogen ones। ओवरऑल जो नॉर्मल अभी हमने आगे भी देखा, जो बोल्ड डिज़ाइन लैंग्वेज था, एक बहुत इम्पोजिंग, एक बहुत बल्कि लुक आ रहा था SUV में, वो पीछे भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। Ignis on the other hand retains its boxy design, may not again appeal to everybody, especially those very flared wheel arches for the rear wheels। Another major thing has to be the rear bumper। अब अगर आप रह रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, well you will be very happy to see कि आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलने वाला है पीछे की तरफ। तो आपका यूजुअली आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, पीछे से बहुत बार ऐसा होता है, इस गाड़ी के साथ भी हो रखा है, इफ़ यू कैन सी, आपको पीछे से बाइक वाले या कोई दूसरी गाड़ी वाला डेफिनेटली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा बहुत कोलिजन हो जाता है, थोड़ा बहुत क्रैश कर जाते हैं लोग। और ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक इंसर्ट रहने वाला है, काफ़ी बल्कि फिनिश है यहाँ पे, दैट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर पेंट वर्क। और लॉन्ग टर्म में इट वोंट बी, यू वोंट बी फीलिंग कि आपकी गाड़ी मे बी रीपेंट मांग रही है या समथिंग लाइक दैट। हैविंग सेड दैट, द plastic inserts makes the vehicle look very bulky। We do have these prominent reflectors on both the ends, and that nominal yet a very elegant punch badging in the center of the boot definitely makes it look really special and fresh in the market। Having said that, the rear visibility offered by both these vehicles, अगर हम अंदर बैठ के बात करें तो that too remains exactly similar। Well, compare the Tata Punch to the Ignis, and the first thing that you'll be noticing are the improved quality levels। टाटा पंच Ignis से एक बेटर डैशबोर्ड दे देता है आपको, विच इज़ वेरी मॉडर्न। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। इवन ऑन द फीचर्स फ्रंट यू विल बी गेटिंग स्लाइटली मोर फीचर्स, अ बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेटर ऑडियो क्वालिटी, फीचर्स लाइक क्रूज कंट्रोल विच आर बीइंग मिस्ड फ्रॉम द Ignis। इसके अलावा मुझे मिल जाता है एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी, विच इज़ मिसिंग फ्रॉम द Ignis। तो अगर मैं फ्रंट सीट की बात करता हूँ, आई थिंक Ignis से डेफिनेटली बेटर पैकेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हाउएवर द IRBM could have been better, Ignis में आपको बेटर मिल जाता है। एंड अगर मैं ईज ऑफ ड्राइवेबिलिटी की बात करता हूँ, आई थिंक दोनों गाड़ी सिमिलर स्कोर करती हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं Ignis के साथ, तो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी नोटिसिंग, थोड़ा सा स्पेस ज़रूर कम है रियर सीट में, बट हैविंग सेड दैट द विड्थ इज डेफिनेटली बेटर दैन द Ignis। I also have these dedicated bottle holders, I have better audio output right behind, and जो आपका विंडो है ये भी Ignis से थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाता है। So all this is making the cabin slightly more airy, and the passengers will be a lot more comfortable here। Also something that is missed on the Ignis is the central armrest। Ignis के अंदर आपको armrest नहीं मिलता है, टाटा पंच में आपको ये चीज़ मिल जाती है। Both these cars have these adjustable headrest, लेकिन Ignis के अंदर आपको 60-40 का split for the rear seat मिल जाता है। So well, speaking of the cabin of the Maruti Suzuki Ignis, again let me tell you, this is not the top of the line variant। This happens to be the Delta, or I would say the second from the bottom। And if I talk about the overall features, let me tell you, I'll be keeping in mind the features list on offer with the top end variant of the Maruti Ignis। So अगर मैं बात करता हूँ, I have a very big or I would say I do get a big touchscreen infotainment system with the Ignis right in the center। Just like the Punch, मुझे यहाँ पर automatic climate control भी मिल जाता है। Similarly, I have the storage spaces, and in all अगर मैं cabin को compare करता हूँ in terms of practicality, in terms of storage spaces, I guess दोनों गाड़ियाँ एक जैसा पैकेज आपको दे देती हैं। Having said that, जो सीटिंग पोजीशन है वो पंच की तरह इतनी SUV लाइक नहीं है, सो आप इतना ऊपर नहीं बैठते हैं। बट लेट मी टेल यू, Ignis 2 इज़ नॉट अ लो स्लंग व्हीकल। आप आराम से गाड़ी के अंदर स्लाइड इन होते हो। जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अपराइट है, काफ़ी हाई है। इन ऑल अगर मैं बात करता हूँ आपके सीटिंग कंफर्ट की, विजिबिलिटी की, डेफिनेटली नॉट एट पार टू पंच, बट यू वोंट बी कंप्लेनिंग। लेकिन अगर आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपको बिल्कुल सामने क्लियर बोनेट दिखता हो, या फिर आप बहुत ऊपर बैठे हो, आपको एक SUV लाइक कैरेक्टर चाहिए, आई गेस यू शुड पिक अप दी पंच। हैविंग सेड दैट, कंपेयर करता हूँ मैं पंच से, तो जो पंच है उसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं लाइक क्रूज कंट्रोल, यू ऑल्सो हैव अ कूल्ड ग्लव बॉक्स। इसके अलावा और भी ऐसे 2-4 फीचर्स हैं विच डेफिनेटली आर मिस्ड ऑन द Ignis। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को हटा दें तो इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्पेस एट द फ्रंट,
आई गेस बोथ ऑफ दीज व्हीकल्स आर कंपेरेबल, और आपको इतना कुछ खास मिलेगा नहीं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द पंच does offer you better visibility, a higher seating position and some additional features. अब पीछे का क्या सीन है? Well, let's check that out as well. So now I am at the rear of the Ignis. जो फ्रंट सीट है मेरी ड्राइविंग हाइट और आई वुड से मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की गई है. आई एम 5'10" and the first thing that I notice straight from the comparing it to the Punch I would say is कि थोड़ा सा जो comfort है डेफिनेटली इग्निस के अंदर मुझे बेटर मिलता है. आई हैव बेटर अंडर थाई सपोर्ट. डू एक्सक्यूज़ मी, ये थोड़ी हमारी पर्सनल व्हीकल है. वी यूज़ इट फॉर आवर बिजनेस पर्पसेज एंड हेंस थोड़ा सा आपको गाड़ी की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस फॉर द रियर सीट. बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ कंपेरेबल टू दैट ऑफ द पंच, बट जो कंफर्ट है स्लाइटली बेटर देन द पंच. अगेन जो सीटिंग हाइट है पंच में, जो आपकी सीट की पोजीशन है थोड़ी सी ऊपर मिल जाती है. But ingress, egress, moving in and out of the Ignis 2 is not difficult, and I think you'll be happy with the package, with the seating comfort. और अगर मैं इन कैबिन कंफर्ट की बात करता हूँ, चाहे वो आगे की सीट्स हो चाहे वो पीछे की सीट्स हो, आई थिंक द Ignis डेफिनेटली ऑफर्स स्लाइटली बेटर कंफर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ, पंच में मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं. आई ओनली हैव अ स्पेस टू कीप वन स्मॉल बॉटल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन ऑन द विजिबिलिटी फैक्टर आई थिंक पंच डेफिनेटली स्कोर्स स्लाइटली बेटर. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जो आपकी मारुति इग्निस है इसमें स्प्लिट फोल्डिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है. सो द रियर सीट्स दे कैन बी फोल्डेड एट अ रेशियो ऑफ 60-40. पंच के अंदर डेफिनेटली ये चीज़ मिसिंग थी. सो वेल वी आर ड्राइविंग दी मारुति इग्निस नाउ, और जो सबसे पहली चीज़ आपको डेफिनेटली ऑब्जर्व होने वाली है दैट हैज़ टू बी द रिफाइनमेंट लेवल्स एंड ऑफ. सो मारुति इग्निस को मिल जाता है एक 4 सिलेंडर इंजन एज अगेंस्ट 3 सिलेंडर दैट वी सी ऑन दी टाटा पंच. अब इसका जो रिफाइनमेंट है, जिसका परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली मच बेटर देन दी पंच. NVH लेवल्स की भी बात करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहने वाले हैं. वी ऑल नो दी मारुति K12V मोटर, वेल इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट इन द सेगमेंट. और चाहे वो पावर डिलीवरी हो, चाहे वो फ्यूल इकोनॉमी हो, वेल आई थिंक यू विल बी एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ दिस मोटर. तो डेफिनेटली येस, परफॉर्मेंस जो है आपको इग्निस में बेटर मिलती है, ऑल थैंक्स टू द फैक्ट कि इसका जो इंजन है थोड़ा सा बेटर पड़ता है पंच से. एंड ऑल्सो पंच इज़ अ हैवी कार. जो बिल्ड क्वालिटी है पंच की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है व्हेन कंपेयर टू द इग्निस. तो जो पंच है उसका जो वेट है दैट डज अफेक्ट द परफॉर्मेंस आउटपुट. एंड समवेयर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं हु अप्रिशिएट्स सेफ्टी ओवर परफॉर्मेंस, आई थिंक you should pick up the Punch over this car. Having said that, अगर आपको चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस, थोड़ी अच्छी एक्सीलरेशन फिगर्स, आई थिंक the Ignis is still the way to go. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ Ignis की, so it is also worth noting the fact कि जो Ignis है उसका जो AMT gearbox है, so the car that I am driving right now it is an automatic. मैंने मैनुअल भी Ignis काफ़ी ज़्यादा चलाई है, so मेरे को एक आइडिया है दोनों गाड़ियों के बारे में. बट अगर मैं अभी AMT पर्टिकुलरली बात करता हूँ तो जो गियर शिफ्ट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली मच सुपीरियर टू व्हाट वी सी इन दी पंच. पंच का जो मैनुअल है कंपेरेबल है इग्निस मैनुअल से व्हेन इट कम्स टू गियर शिफ्ट्स, व्हेन इट कम्स टू इनिशियल एक्सेलरेशन. लेकिन अगेन कहीं ना कहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इंजन रिफाइनमेंट की बात करते हैं, इन दैट रिगार्ड दी Ignis definitely has a clear edge over the Punch. AMT is quicker, AMT आपको better acceleration भी provide कर देता है, and I think it is tuned slightly better to complement the power delivery of this engine. Fuel economy में भी I guess ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला है दोनों गाड़ियों में. However, because Tata Punch जो है थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी डायमेंशंस में बड़ी है, टायर्स उसके ज़्यादा ग्रिपी हैं, ज़्यादा चौड़े हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हो सकता है कहीं ना कहीं फ्यूल इकोनॉमी में 2 या 3 यूनिट से पंच को पीछे कर दें Ignis से. लेकिन जो हमने माइलेज टेस्ट किया था टाटा पंच का, हमने गाड़ी को चलाया सिटी के अंदर, हमने गाड़ी को चलाया हाईवे पे, एंड आई थिंक उन कंडीशंस में जो उसकी एवरेज आई थी, यू शुड चेक आउट द वीडियो, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव रहने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं विजिबिलिटी की बात करता हूँ, चाहे मैं स्टीयरिंग
की ईज़ ऑफ यूजेबिलिटी की बात करता हूँ, आई थिंक उसमें थोड़ा पंच बेटर रहती है। इग्निस का स्टीयरिंग डेफिनेटली लाइट है, बट वो जो फीडबैक मुझे चाहिए होता है अपनी गाड़ी से वो मिसिंग रहने वाला है इसमें। तो जो पंच है उसका स्टीयरिंग लाइट भी है, बट एज द स्पीड्स दे गो अप इट वेज अप वेल और आपको बहुत अच्छा एक बहुत इंप्रेसिव फील और फीडबैक दे देता है। विजिबिलिटी में भी आप पंच के अंदर यू सिट वेरी हाई, सो यू हैव अ गुड विजिबिलिटी ऑफ द हुड अप फ्रंट। आपको साइडों में भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एंड इन दिस रिगार्ड आई थिंक द पंच हैज़ एन एज ओवर द इग्निस। सो दोनों को अगर हम नेक टू नेक कंपेयर करते हैं, दोनों अपने सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको अवेलेबल है। इफ यू नीड अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आई थिंक आपको इग्निस को उठाना चाहिए। बट अगर आप परफॉर्मेंस को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, यू आर ओके विद डिसेंट परफॉर्मेंस एंड नॉट वेरी फास्ट परफॉर्मेंस, बट आपको चाहिए एक बहुत अच्छा कैबिन विद वेरी हाई सेफ्टी, with good build quality levels and a good looking exterior design as well, I think Punch should be a choice. Ride and handling की भी बात अगर हम कर ही लेते हैं, so Punch, well it's despite its size आपको एक बहुत commendable suspension setup दे देता है। Ignis on the other hand has a firm suspension, तो जो keen driving enthusiasts हैं they'll be happy pushing the vehicle into the corners। body roll आपको almost zero मिलता है Ignis के अंदर, और जो गाड़ी है बहुत स्टेबल रहती है एट हायर स्पीड्स एंड व्हेन यू आर पुशिंग इट हार्ड ऑन इनटू द कॉर्नर्स। पंच ऑन दी अदर हैंड टू रिमेन स्टेबल, बट डायनेमिक्स की बात करें वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट मुझे दे देती है गाड़ी के अंदर, एंड हेंस इतने अच्छे डायनेमिक्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। सो वाइल एज अ फैमिली मैन आई डेफिनेटली पिक अप पंच फॉर इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ राइड एंड हैंडलिंग। एज ए ड्राइविंग एंथुजियास्ट आई थिंक इग्निस विल बी माई चॉइस। Well, we checked the exteriors and the interiors of the car. Performance wise अगर मैं बात करता हूँ, definitely yes, the Ignis has an edge over the Punch, all thanks to the fact कि Ignis का जो curve weight है काफ़ी कम है when compared to the Punch, almost 200 किलो हल्की है Ignis। इसके अलावा जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12B मोटर है Ignis के अंदर, that is also slightly superior when compared to the Punch, लेकिन that does not mean कि जो Punch है उसकी परफॉर्मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम मिलने वाला है। द इंजन फील्स वेरी रिफाइंड, क्लच ट्रैवल काफ़ी लाइट है। अभी हमारे पास मैनुअल है, हमने ऑटोमेटिक भी चलाया था, एंड लेट मी टेल यू बोथ दीज व्हीकल्स दे ऑफर सिमिलर ड्राइव एक्सपीरियंस, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी, येस द इग्निस विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर द पंच। लेकिन अगर मैं पंच की बात करता हूँ, इट इज़ ऑफरिंग मी बेटर सेफ्टी, बेटर बिल्ड क्वालिटी, definitely a much better design and a more modern and a well-built cabin as well. So in this comparison, at a starting price of around 5.5 to 6 lakh rupees is what we are expecting for the Punch. I think this definitely will serve you a lot of value for money when compared to the Ignis. Again, Ignis की pricing भी almost इसी range में start होती है. I think the starting price is somewhere around 5.2 lakhs for the base variant. And in all, अगर मैं दोनों गाड़ियों को compare करता हूँ, while the Ignis gets better engine and performance, it is the Punch that gives you better practicality, better looks, almost similar performance and a much better build quality. With this being said, do not forget to check out our review of the Punch, and we also did a fuel economy run of this new Tata Punch. अभी गाड़ी कितना देती है, to check that out, well, go to that video. Link will be in the description box below. With this being said, we come to the end of this video. You are watching All Rounders India. I am Nitin Khadian. But before I go, I definitely request you to subscribe to the channel, hit that bell icon so that you will be notified every time we put up a new video. We will definitely see you soon. Till then, stay safe, stay healthy.